सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम ठाकुर माँ स्वामीजीर पादपद में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करी। भगवान श्री कृष्णेर पादपद में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करी और আপনাদের সবারই মধ্যে সেই অনন্ত অখণ্ড অবিনাশী পরব্রহ্ম তত্ত্ব যে রয়েছে তাকে মুহুর মুহুর প্রণাম জানিয়ে আমরা ভাগবতের এক অদ্ভুত বিন্দু আছে কুন্তি স্তুতি, তার চিন্তন করব আজকে। আমার একটা প্রথম অনুরোধ থাকবে, আমার বাংলা বলার কোনো অভ্যাস নেই। Last 25 to 27 years I have not spoken in Bengali. তো আমি চেষ্টা করব, আমাকে এরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছে মহারাজ আপনি বাংলায় বলবেন, আমিও বলেছি আমি চেষ্টা করব। হয়তো আমার বাংলায় অনেকই ভুল থাকবে, যেহেতু আমার মাতৃভাষাও নেই আর কোনো বলার অভ্যাসও নেই, কিন্তু আমি পূর্ণরূপে চেষ্টা করব। আর আগে আমি বলি যে আপনাদের সবাইকে আমি খুব প্রণাম জানাইছি, কেন আপনারা সবাই খুব সৎসঙ্গ প্রিয় আছেন, সেটা আমার সব থেকে ভালো লাগে। আপনারা সবাই একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তন সব সময় শোনার জন্য ইউ আর অল ইগার টু কন্টিনিউসলি হিয়ার দিস ওয়ান্ডারফুল সৎসঙ্গ। মঠ মিশনে অনেক সাধুদের থেকে আপনারা অনেক ভালো সৎসঙ্গ শুনছেন আর জীবনকে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি প্রদান করার জন্য আপনারা সবাই চেষ্টা করছেন, সেটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। তো আজকে আমি ভাগবতের কুন্তি স্তুতি আছে, অদ্ভুত স্তুতি। কুন্তি স্তুতিতে মাতা কুন্তির অনেক ভাব প্রকট হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটা উনি ভগবান আছেন আর কি রূপে ভগবানকে মানছেন উনি, সে ভাব প্রকট হয়েছে। বাৎসল্য ভাব প্রকট হয়েছে, দাস্য ভাব প্রকট হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ আমার সর্বস্ব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার ছাড়া আমি কাউকে চিনি না, কাউকে জানি না, সে ভাব অত্যন্ত গূঢ়তাপূর্বক অত্যন্ত গূঢ় ভাবে প্রকট হয়েছে। তো এই কুন্তি মায়ের অনেক ভাবগুলো ওনার স্তুতির মধ্যে রয়েছে। এই কুন্তি স্তুতি একটা অপূর্ব স্তুতি আছে। আর এক মাতা কুন্তি এই স্তুতি কি অবস্থায় করেছেন, কখন করেছেন, ওটা একটু বর্ণন করব আমরা, তারপরে কুন্তি স্তুতির মধ্যে যাব। ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কথামৃতে আমাদেরকে বলেছেন কলিতে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি। কলিতে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি কি সেটা কুন্তি মা নিজের জীবন থেকে দেখাচ্ছেন। স্তুতি থেকে উনি স্তুতির শুরুয়াত করছেন জ্ঞান দিয়ে আর পূর্ণাহুতি করছেন ভক্তি দিয়ে এবং জ্ঞান দিয়ে। ওনার যে ভক্তি আছে তার মধ্যে জ্ঞান এমন আছে কি যেন ভক্তি আর জ্ঞান দুটো আলাদা নেই, অপিতু ইটস আ টু সাইডস অফ কয়েন। একটা অদ্ভুত ভাবে উনি প্রকট করেছেন। আর এত সুন্দর স্তুতি আছে ভাগবতে, অনেকগুলো স্তুতি আছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা সময় পাই অনেকগুলো স্তুতি থেকে কিছু কিছু স্তুতির উপরে আমরা চিন্তন করার চেষ্টা করব। আপাতত প্রথমে আমরা কুন্তি স্তুতি দিয়ে শুরু করি। একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ পূর্ণ হয়ে গেছে।
5 পাণ্ডব, দ্রৌপদী, মাতা কুন্তি হস্তিনাপুরের নিজস্ব প্রাসাদে রয়েছেন। সেই প্রাসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রয়েছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উনি প্রতিদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মুহুর্মুহুর দণ্ডবত প্রণাম নিবেদিত করছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবস্থা কি? উনি হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে গেছেন, কিন্তু ওনার মন মানে একটুও রাজপ্রাসাদের দিকে নেই বা রাজ কাজের মধ্যে নেই। উনি প্রতিপল কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তনে জীবন যাপিত করছেন। ভাগবতকার খুব সুন্দর আর টিকাকার খুব সুন্দর করে লিখেছেন। ধরুন আমরা কোন একটা বনে গেছি, অরণ্য আছে, বন আছে, সেখানে আমরা খুব তৃষাতুর হয়েছি, এমন পিপাসা পেয়েছি আমরা 24 ঘন্টা ধরে যেন জল যায়নি শরীর ভিতরে, আর চারিদিকে জল খুঁজছি। ইতিমধ্যে আমরা একটা ছোট গ্রাম দেখেছি, ছোট গ্রামে আমরা চলে গেলাম, সেখানে আমাদেরকে দেখে লোক আমাদের পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে। তো আমরা কি ও পূজা পছন্দ করব? কখনই নেই। আমরা চিৎকার করো না, আমাদেরকে আগে জল দাও, আমার খুব তুষাতুর হয়েছে। লোক আমাদেরকে খুব সম্মান দেয়, বলে আমার সম্মান চাই না, আমি পূজা চাই না, আমি তৃষাতুর হয়েছে, আমাকে জল দাও। জল না পেলে আমার প্রাণ চলে যাবে এক্ষণে। সেই অবস্থা হয়েছে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের। উনি সবকিছু পেয়েছেন, হস্তিনাপুরের রাজ্য পেয়ে গেছেন ধর্মরাজ, কিন্তু হস্তিনাপুরের এত বড় রাজ্য পাওয়ার পরে মানে একটুও রাজ্যের দিকে ওনার কোনো ইচ্ছা নেই, রাজসুখ ভোগ করার জন্য একটুও ইচ্ছা নেই। ওনার পুরো হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মে উনি অর্পিত করে দিয়েছেন। আর কিভাবে অর্পিত করেছেন? সকালে উঠে সর্বপ্রথম ভোরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছে গেছেন, ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদিত করছেন। পাঁচों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव আর पांचों पांडव और द्रौपदी সবাই মিলিয়ে ভগবানের কাছ থেকে ওনার সৎসঙ্গ শ্রবণ করছেন। সেই রীতিতে আজকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সকালে গেছেন ভগবানের কাছে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদিত করেছেন। আর হৃদয়ের আবেগ হয়েছে, হৃদয়ের প্রেম চোখের জল হয়ে বেরিয়ে গেছে। ভগবানের শ্রীচরণে উনি প্রক্ষালন করছেন, ভগবানের শ্রীচরণ প্রক্ষালন করছেন। কিভাবে করছেন? নিজের চক্ষুর অশ্রুতে ভগবানের চরণ প্রক্ষালন করছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, হে প্রভু, আমি আর কিছু চাই না, আমি শুধু আপনাকে চাইছি, আমি আপনার ছাড়া আর থাকতে পারবো না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অনেক ভাবে ভগবানের স্তুতি করছে, প্রার্থনা করছে। কাছে ভীম, অর্জুন, সহদেব, নকুল এবং দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছে। ভগবানকে সুন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট করানো হয়েছে, বসানো হয়েছে।
ভগবানের শ্রীচরণে ওরা জল দিচ্ছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের মস্তক ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করেছে। ভগবান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন, হে ধর্মরাজ, আমি তোমার ভক্তি দিয়ে খুব প্রসন্ন হয়েছি। হে ধর্মরাজ, কিন্তু একটি কথা আছে, আমি অনেক দিন ধরে দ্বারিকা থেকে বাইরে আছি, আমাকে দ্বারিকা ফিরে যেতে হবে আজকে। ভগবান যেই এ কথা বলেছেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আর নিজেকে সামলাতে পারেননি, হুর হুর করে কেঁদতে আরম্ভ করেছে। ভীম, অর্জুন, সহদেব, নকুল আর দ্রৌপদী সবার চোখে অশ্রু চলে এসেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কহেছেন, প্রভু, আমার কি ভুল যে আপনি আমাকে এত বড় सजा দিচ্ছেন, এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন? हमारी कौन सी भूल है प्रभु? हमारा कौन सा अपराध हुआ जो आप हमारा त्याग करके द्वारिका जाने की सोच रहे हैं? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজেকে সামলাতে পারছেন না। ভগবানের শ্রীচরণ নিজের वक्षस्थले রেখে দিয়েছেন। अर्जुन भगवान के श्रीचरण को पकड़ के अपने वक्षस्थल से लगा दिए। দ্রৌপদীর নেত্র থেকে অশ্রু বইছেন, আর দ্রৌপদী পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মা বসুন্ধরাকে নিজের ব্যথা জানাচ্ছেন। নকুল, সহদেব ভগবানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ভগবানের হাত ধরে। আর ভীম ভগবানের কটি প্রদেশ ধরে কাঁদছেন, প্রভু আমি আপনাকে যেতে দেব না, আমরা আপনাকে এক ক্ষণও আমাদের থেকে আলাদা ভাবতে পারি না। আমরা দেখতে we will not be able to survive, हम बच नहीं पाएंगे प्रभु, আমরা এক ক্ষণ হোক জীবিত থাকতে পারবো না প্রভু আপনার ছাড়া। ভগবান সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, হে ধর্মরাজ সাবধান হয়ে যান, এখন ধর্মের শাসন হস্তিনাপুর উপরে এসেছে, আর কোনো চিন্তার কারণ নেই, আর আমি চলে আসবো কিছুদিনের পরে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুই শুনতে চাইছেন না। ইতিমধ্যে দেখা গেল এক বৃদ্ধ নারী দৌড়ে দৌড়ে ছুটে এসেছে, আর ছুটে এসে সোজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পড়ে গেছে। ভগবান হঠাৎ করে বলছে, দেখছে এটা কি হলো? আরে ভগবান ও নারীকে মানে তুলছেন, বলে এটা আপনি কি করছেন মা? আপনি হচ্ছেন আমার পিসিমা, আমি আপনার ভাইপো, আপনি আমাকে কেন প্রণাম করবেন? আমি আপনাকে প্রণাম করব। আর ও বৃদ্ধ নারী আর কেউ নেই, মাতা কুন্তি আছে। আর কুন্তি মা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ, না আমি তোমার পিসিমা, আর না তুমি আমার ভাইপো, আমি জানি তুমি কে, তুমি হচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দ। তুমি বড় ছল করেছো আমাদের সঙ্গে, তুমি সারা জগতের সঙ্গে ছল করেছো। তুমি সেই পূর্ণ পুরুষোত্তম, তুমি সেই अनंत अखंड अविनाशी ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर,
কিন্তু তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছো, তোমাকে কেউ চিনতে পারছে না। তুমি জগতের সঙ্গে ছল করেছো বড়, আমি জানি তুমি ছলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমাকে কি করিব? দেখুন, ভাগবতকার খুব সুন্দর ভাবে একটা কথা বর্ণন করছেন। একটা লীলা প্রসঙ্গ আছে। ভগবান 11 বছর হয়ে গেল ভগবান বলরামজির সঙ্গে যখন অক্রূরজি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে নিতে এসেছেন মথুরা থেকে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ अर्जुन क्षमा कीजिए बलरामेर संगे और अक्रूरजीर संगे मथुरा फिरे গেছেন, मथुरा গেছেন। ওখানে গিয়ে কংসের বধ করে তারপরে সান্দীপনী ঋষির আশ্রমে গেছেন, তারপরে ওখান থেকে দ্বারিকা গেছেন। জগৎ এরকম জানে কি যেন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছে। এটাই হচ্ছে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের সব থেকে বড় माया। हमारा नम्र निवेदन रहेगा, खूब ध्यान से इसका श्रवण करें, इसका चिंतन कीजिए। भगवान का सबसे बड़ी माया यही है, भगवान का सबसे बड़ा छल यही है जगत के साथ। सबको ऐसा लगा कि भगवान वृंदावन का त्याग करके द्वारिका चले गए, किंतु कृष्ण कोनो दिन ही वृंदावन त्याग करे जानी। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মায়া স্বরূপ দিয়ে জগৎকে দেখাচ্ছেন কি উনি বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা চলে গেছেন, সেখান থেকে দ্বারিকা চলে গেছে। এটাই সব থেকে বড় মায়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, নিজে কইছেন, দুহাত তুলে কহেছেন, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन का त्याग करके कभी नहीं जाऊंगा, আমি কোনোদিন वृंदावन ছেড়ে একটা পাও বাইরে রাখবো না। अरे भागवतकार ने, टीकाकारों ने, महात्माओं ने तो यहां तक लिख दिया, भगवान रह गए वृंदावन में ही है आज भी। भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन का त्याग करके नहीं गए। अरे यही तो भगवान की माया है कि लोगों को लगता है कि भगवान वृंदावन का त्याग करके द्वारिका चले गए, इसलिए भगवान को छलिया कहती है यहाँ कुंती माँ कि तुम सबसे बड़े छलिया हो। लोगों को लगता है, लोकेरा भावे जेन तुमी आमार भाईपो, आमी तुम्हार पिसीमा, किंतु तुमी आमार भाईपो नय, तुमी के? अद्भुत वर्णन करছেন। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परम अलक्षम सर्वभूतानामंतर्बहिरवस्थितम्। हे श्री कृष्ण तुम कौन हो? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरः, श्री कृष्ण तुम वही, तुम से आदि पुरुष। आदि पुरुष मानी के? बोले जे देश काल निमित्त থেকে পরে আছে, the one which is beyond time space causation। তুমি সেই আদি পুরুষ যায় যে সংকল্প করেছে আমি এক আছি अनेक होई, एको हम बहुश्यामा प्रजाएयम, आई एम वन लेट मी बिकम मैनी। जिसने वह संकल्प किया और समग्र ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, वो स्वयं ब्रह्मांड बन करके आ गए। श्री कृष्ण तुम वह हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वर। खूब ध्यान से हम श्रवण करें। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देवेर उपरे একটা সুন্দর মানে কথা আছে। ঠাকুরকে সবাই বলছেন আপ, বলে আপনি অবতার অবতার। তো একজন पंडित मने হয় शशधर तर्क चूड़ामणि,
ঠাকুর ওনাকে বলছেন কি লোকেরা মানে নিজের শরীরকে ইঙ্গিত করে বলছেন কি এটাকে বলে লোকেরা অবতার বলছেন। তখন উনি বলছেন ওরা অবতার বলছে আপনাকে? বলে আর লোকেরা এর শরীরকে অবতার বলছে। বলে আপনি অবতার নন, আপনাকে অবতার বলে ওরা খুব ছোট করে দিয়েছে। তো ঠাকুর বলছেন আপনি কি বলতে চাইছেন? বলে আপনি সেই যেখান থেকে অবতার প্রকট হয়, যেখান থেকে অবতার আসে সেই আপনি। সে কে? যে এখন কুন্তি মা বলছে নমস্যে পুরুষম ত্বাদ্যমীশ্বর প্রকৃতে পরম, সেই ব্রহ্ম अनंत अखंड अविनाशी नासदीय सुक्त में जिसका वर्णन आया है, ना सदासिन नो सदासित, हिंदी में गाते ना हम लोग, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, जल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। যখন কিছুই ছিল না তখন শুধু উনি ছিলেন। উনি কে? সে আদি পুরুষ, যিনি সংকল্প করলেন আমি এক আছি, একা আছি, অনেক হই, একোহম বহুশ্যাম, আই এম ওয়ান, লেট মি বিকাম ম্যানি। সেই যেখান থেকে অবতার আসেন সেই শ্রী রামকৃষ্ণ। তো সেই শ্রীকৃষ্ণের এখন পূজা করা হচ্ছে। নমস্যে পুরুষম ত্বাদ্যমীশ্বর, আপনি আদি পুরুষ সেই। নমস্যে পুরুষম ত্বাদ্যমীশ্বর প্রকৃতে পরম, যিনি প্রকৃতি থেকে পরে আছেন, উপরে। প্রকৃতি যার আদেশে কাজ করেন, প্রকৃতি যার আদেশে সব জগতের কাজ করেন। প্রকৃতে পরম অলক্ষ্যম সর্বভূতানাম অন্তর্বহিরवस्थितम, ও শ্রীকৃষ্ণ আপনি सब जड़ चेतन, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सरिता, समुद्र, सरोवर सवारी भीतरे और बाहरे शुद्ध आपने ही आছেন। अपना छड़ाई जगते आर किच्छु नहीं, आपनी ही जगत होए রয়েছেন, स्पष्ट कहा है। আর তারপরে কি বলছেন? মায়া জবনিকাচ্ছন্নম অজ্ঞাদোক্ষজমম ব্যয়ম ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা। প্রভু এই মায়া থেকে যারা মোহিত হয়ে গেছে তারাই আপনাকে অত্র তত্র সর্বত্র দেখতে পাননি। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। बस हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, बस तू एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुन, আমার ছাড়া জগতে কেউ নেই, শুধু আমি রয়েছি জগতে। যারা অজ্ঞানে আছে তারাই এটা জানতে পারে না। মত্ত পরতরম নান্যত কিঞ্চিদ अस्ति ধনঞ্জয়, এটাকে স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান যোগে খুব সুন্দর করে বলেছে। জ্ঞান যোগে কি বলছেন? ওয়ান ইজ অ্যাপিয়ারিং অ্যাজ ম্যানি, একই অনেক রূপে ভাসিত হচ্ছেন। সেটাই এখন মাতা কুন্তি বলছেন, খুব সুন্দর বর্ণন করছেন। কি বলছেন মাতা কুন্তি? কুন্তি মা কেছেন মায়া জবনিকাচ্ছন্নম অজ্ঞাদোক্ষজম অব্যয়ম, মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ মায়ার মধ্যে রয়েছে। মায়া মানে কি? বলে মা মানে যেটা নয়, ইয়া মানে যেটা নয়, তবেও যে দেখতে পাচ্ছেন, যেটা দেখা দিচ্ছেন। माँ मानी जो नहीं है, या मानी जो नहीं होने पर भी दिखाई देता है, उसको कहते हैं माया। তো শ্রীকৃষ্ণ তোমার ছাড়াই জগতে কেউ নেই, কিন্তু আমরা তোমাকে না দেখে অনেক মানুষগুলোকে দেখছি। মানুষের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে দেখছি, অনেকে গৃহস্থাশ্রমে দেখছি, অনেকে বানপ্রস্থাশ্রম, অনেকে সন্ন্যাস আশ্রমে, অনেককে ভালো লোক দেখছি, মন্দ লোক দেখছি। অনেক ভাবে পশু, পক্ষী, কীট,
সব ভিন্ন ভিন্ন দেখছে, কিন্তু কিছু ভিন্ন নেই। শ্রীকৃষ্ণ তুমি সর্বরূপে আছো, সর্বরূপে তুমি নেই, কিন্তু তুমি সর্বরূপে হয়ে আছো। খুব সুন্দর। আর সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন লীলা করার জন্য এই জগৎ রূপে হয়ে আসেন, তখন কি হয়? তখন মাতা কুন্তা বলছে, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় गोविंदाय नमो नमः। आहा, वही शुद्ध ब्रह्म जब स्वयं जगत का मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके आया तो क्या बना? बोले वही ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, वो श्री कृष्ण बना। कृष्णाय वासुदेवाय। लोग कहते तुम वासुदेव के पुत्र हो, देवकी के पुत्र हो, कोई कहते नंद यशोदा के पुत्र हो, गोप हो तुम, गोपी जनों के है वो गोप बालक को हो। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें पुनः पुनः वंदन करती हूँ, आमी तुम्हाके मुहुर मुहुर प्रणाम জানাই। মাতা কুন্তি বলছেন, পরে কি বলছেন? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। শ্রীকৃষ্ণ, আমি জানি আপনার নাভি থেকে কমল প্রকট হয়েছে, কমলের মধ্যে ব্রহ্মা প্রকট হয়েছে, ব্রহ্মাজি সমগ্র সৃষ্টির বিস্তার করেছে, কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে আপনি। নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে, যিনি সব সময় মানে পদ্ম ফুলের মালা ধারণ করে রয়েছেন। নমঃ পঙ্কজমালিনে নমঃ পঙ্কজনেত্রায়, যার চক্ষু কিরকম পদ্ম ফুলের মতো বড় লোচন যার আছে। নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে নমঃ পঙ্কজনাভায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্গ্রহে। হে প্রভু, আপনি আমার ভাইপো নন, এখন আমি ভালো করে বুঝে গেছি। আপনি জগতের সঙ্গে ছল করেছেন। তারপরে মাতা কুন্তি খুব সুন্দর কথা বলছে। এখন ধীরে ধীরে শান্ত ভাব, মানে আস্তে ধীরে ধীরে করে শান্ত ভাবের বিস্মরণ হচ্ছে। আর দাস্য আর দাস সেবক और দাস্য ভাব আসছে। অনেক ভাব আছে, শান্ত ভাব, দাস্য ভাব, সখ্য ভাব, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। তো এখন মা দাস্য ভাবে এসেছে, এতক্ষণ শান্ত ভাবে ছিলেন। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, আপনি কে? নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে নমস্তে পুরুষম ত্বাদ্যমীশ্বর ইত্যাদি বলেছেন। এখন সেই কুন্তি মা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ, তোমার স্মরণে আছে না, যখন আমার ছেলে ভীমকে ও বিষের লাড়ু খাওয়ানো হয়েছে, লাক্ষাগ্রহে যখন আমাদেরকে জ্বালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তখন কে রক্ষা করেছে? তুমি শুধু রক্ষা করেছো। দ্রৌপদী স্বয়ংবরে অর্জুনের মধ্যে শক্তি কে আরোপিত করেছে? তুমি করেছো। তারপরে 14 বছর বনবাসে কেটেছে আমার ছেলেরা, দ্রৌপদী সহ। বনবাসে প্রতিপল কে রক্ষা করেছে? শুধু তুমি রক্ষা করেছো, আর তো কেউ করেনি। আর এখনই এই কিছুক্ষণ আগে বলে উত্তরার গর্ভে যে পরীক্ষিত ছিল, তার উপরে ब्रह्मास्त्र के চালিয়েছিল? उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र किसने चलाया था? अश्वत्थामा ने। और उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा किसने की? बोले आपने की है। हे श्री कृष्ण, जब जब हमारी पर विपत्ति आई,
तब तब तुमने हमारी रक्षा की है, और आज तुम कह रहे तुम हमको छोड़ के चले जाओगे? असंभव है। माता कुंती ने अपना मस्तिष्क भगवान के वक्षस्थल पर रख दिया है। हे श्री कृष्ण, इतनी बड़ी सजा मत दो हमें, हम सब दुख सहन कर लेंगे, पर आपके वियोग का दुख श्री कृष्ण हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब श्री कृष्ण तुम ही एकमात्र रक्षणहार होकर के, तारणहार होकर के हमारे पास आए हो, और आज तुम कहते हो तुम द्वारिका चले जाओगे? वो प्यारे, कभी नहीं हो सकता है। भगवान माता कुंती को समझा रहे, मैया बात ऐसी नहीं है। मैया अभी तो हस्तिनापुर की गादी पर धर्मराज युधिष्ठिर का शासन आ गया है, मां परिस्थिति अनुकूल हो गई है, अब परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है। माता कुंती कहती क्या कहा तुमने? हस्तिनापुर का शासन मिला इसलिए तुम चले जाओगे? माता कुंती धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखती है। धर्मराज कहते मां क्या करो, इसी वक्त हम हस्तिनापुर को छोड़ करके चले जाएंगे। माता कुंती ने कहा हमें नहीं चाहिए, हस्तिनापुर का साम्राज्य वापस ले लो, हमें क्षण नहीं रहना है उस हस्तिनापुर में, जिस हस्तिनापुर में हमारे प्राण प्रिय प्राणाराध्य, हमारा जो सर्वस्व है, ऐसे श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले जाए, ऐसे हस्तिनापुर में हमें क्षण नहीं रहेंगे। हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें पुनः वनवास दे दो। कि जब जब दुख आया, जब जब आपत्ति आई, तब तब तुमने कभी नहीं कहा कि तुम हमको छोड़ के जाओगे, और आज कह रहे हो हस्तिनापुर पर साम्राज्य हो गया धर्मराज युधिष्ठिर का, इसलिए तुम छोड़ के चले जाओगे। श्री कृष्ण कभी नहीं हो सकता। और माता कुंती ने अद्भुत स्तुति की उस श्लोक में, जो कुंती माँ ने मांगा आज तक जगत में कोई मांग नहीं पाया। माता कुंती कहते विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्री कृष्ण, मुझे सब समय विपत्ति दो, सब समय मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में तुम सब समय मेरे साथ खड़े हो। मुझे वो परिस्थिति नहीं चाहिए जिस परिस्थिति में तुम हमसे दूर होना चाहते हो। हमें तो वही परिस्थिति दो, प्रतिकूल परिस्थिति, दुख दो, विपत्ति दो, प्रतिपल, ताकि प्रतिपल तुम हमारे साथ रहो। मां ने अपना मस्तक फिर भगवान के वक्षस्थल पर रख दिया। जगत में आज तक किसी ने ऐसा मांगा नहीं है। याद रहे, यहां माता कुंती दुख नहीं मांग रही है। माता कुंती दुख मांगना तो दूसरी बात है, प्रथम बात क्या है? हमें श्री कृष्ण तुम्हारा नित्य संग चाहिए, नित्य सहवास चाहिए। उसके लिए जो परिस्थिति लेनी हो वो परिस्थिति हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। चाहे दुख हो, प्रतिपल दुख हो, तो हमें दुख चाहिए वो, क्योंकि हे प्राणधन, हे प्राण प्रिय, तुम सब समय हमारे साथ रहोगे। भगवान मैया के अश्रु पूछते हैं। अब वात्सल्य भाव आया। भगवान के गालों पर
माता कुंती ने अपने दोनों हाथ रख दिए, अब तो चुम्मा ले रही है। श्री कृष्ण तुम्हें मालूम नहीं है, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद् बिभेति। लाला तुम भूल गए हो, बालक भाव आया है ना, माँ का भाव वात्सल्य भाव आया, श्री कृष्ण भी बालक हो गए, उनके बेटे। लाला तुम्हें मालूम नहीं है, कहती है, अभी तक तो भगवान थे, अब बालक बन गए भगवान। तो कहते लाला तुम्हें मालूम नहीं है, जब यशोदा मैया ने गोकुल में तुमको उखल से बांधा था, लाला उस दिन में गोकुल में आई थी, छद्म वेश थे, आई वेश में आई थी। लाला मेरे भैया वसुदेव ने मुझे भेजा था छद्म वेश में, और लाला मैंने तुम्हारा सौंदर्य देखा है, चरणों में सुंदर नूपुर पहने, हमारा लाला अप्रतिम था, तेरा सौंदर्य, तेरा अरे प्यारे तेरा सौंदर्य पर तो सब मुग्ध हो चुके हैं। चरणों में नूपुर पहने थे, कमर पर करधनी थी, हाथों में बाजू थे, कलाई में कड़े पहने थे, वक्षस्थल पर मोतियों की माला थी, तेरे काले काले घुंघराले तेरे केश, और उसके ऊपर में सुंदर मयूर पेच, कमल के पंखुड़ी के समान तेरे विशाल नेत्रा, और लाला तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार प्यार रू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरा अद्भुत सौंदर्य का दर्शन मैंने किया, और मैया तुझे उखल से बांधने जा रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो तो, और जब मैया ने उखल से तुम्हें बांध दिया तो हे जगदीश्वर तुम रोने लगे थे, नेत्रों का काजल तुम्हारे गाल पर आ गया, अरे जिससे ये काल भी थर थर कांपता है, आज वह मैया यशोदा के कोप से कांप रहा था, मैंने ये देखा। हे श्री कृष्ण मैं क्या कहूं, उस रूप माधुरी को देख करके, उस रूप माधुरी को मैंने मेरे हृदय में अंकित कर दिया है, उसी दिन से लाला आज तक जो जीवित हूं केवल उसी के सहारे जीवित हूं, और तुम कह रहे तुम चले जाओगे, संभव नहीं, हम नहीं जाने देंगे तुमको। अब भाव का शमन हुआ, वात्सल्य भाव का। अब भगवान को कहती है कुंती मां, क्या कहती है, अरे श्री कृष्ण तेरे श्री चरण कैसे है, प्रभु जो तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय लेता है उसको तो वो ये संसार कैसे वो पार कर देता है, बोले अत्यंत सहजता से। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्य चिरेण तारकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्त्य गृणन्त्य भीक्ष्णसः,
प्रभु जो आपके गुणों का स्मरण करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, गान करता है, उसके लिए तो ये संसार सागर सहजता से वो पार कर देता है। आपके चरण रूपी नौका पर चढ़ करके प्रभु वो इस संसार सागर को बहुत सहजता से पार कर देता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। देखिए भगवान के श्री चरण की महिमा कैसी है। महात्माओं ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हमारे भगवान के श्री चरण मधु के समान है। मधु है, अमृत है, और बोले कैसे है, आगस है। अर्थात प्रभु के श्री चरण पहले मधु है, जो उन चरणों का आश्रय लेता है। मधु मानी क्या होता है? मद, समझिए। शहद, शहद क्या है? औषधि है। अरे भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है, उसके हृदय में जो ये वासना रूपी रोग हुआ है, उस वासना रूपी रोग सदा के लिए मिट जाता है। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान के श्री चरण मधु के समान है। मानो उसका चिंतन करो। सचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसत नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयांधकार। प्रभु आपके चरणों की महिमा अद्भुत है। वो मधु के समान है, औषधि के समान है। हम सबको भवरोग हुआ है प्रभु, हम जितना आपके चरणों का आश्रय लेंगे प्रभु, हमारा ये भवरोग जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके श्री चरण औषधि के समान है। शहद की समान, शहद औषधि है, मधु औषधि है। अरे प्रभु आपके श्री चरण कैसे अमृत के समान है। प्रभु हम तो इस संसार रोग से ग्रस्त होकर मरे जा रहे हैं। संसार का चिंतन करके करके हम पल मृत्यु की ओर ग्रसित हो रहे प्रभु। या प्रत्येक पल केवल दुख दुख और दुख है। प्रभु आपके श्री चरणों का चिंतन करते हैं तो अमृत बहता है। प्रभु आपकी कथा का चिंतन करते हैं, आपकी कथा का श्रवण करते हैं, प्रभु आपका गान करते हैं, तो आपकी कथा आपको अमृत प्रदान करती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपके श्री चरण अमृत के समान है। और प्रभु आपके श्री चरण दूसरे किसके समान है? हमारे हृदय के भीतर में जो विष है वो विष को खा लेता है। विष क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य रूपी विष, षड रिपु रूपी विष जो है, प्रभु आपके श्री चरण का जो आश्रय लेता है वो इस विष को पचा डालता है, पिघल करके हमारी रक्षा कर देते हैं प्रभु। प्रभु हम केवल आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। क्या सुंदर स्तुति की है। 5 मिनट आप लोग समय दे तो और एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, पूर्ण कर दे। माता कुंती अद्भुत करती है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशुने स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुवृष्मिषु। माता कुंती भगवान के चरणों में गिर चुकी। भगवान पुनः पुनः उठा रहे, मैया क्या कर रही है आप? मैं आपका पुत्र, आप मेरी मां। माता कुंती
भगवान के अश्रु पोंछ रही है, भगवान के नेत्रों से भी प्रेम की धारा चल रही है, कुंती मां के नेत्रों से भी अश्रु की प्रेम की धारा चली है। दोनों एक दूसरे के नेत्रों को पोंछ रहे हैं। और माता कुंती कहती है, हे द्वारिकाधीश, अथ विश्वेश, ओ विश्व की आत्मा, अथ विश्वेश विश्वात्मन, विश्व अथ विश्वेश विश्वात्मन, अरे विश्व का जो इसने स्वरूप धारण किया है वह तुम हो, समग्र विश्व के रूप में तुम हो, समग्र विश्व की आत्मा तुम हो, और तुम ही विश्व बन करके आए हो। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में। मेरी एक प्रार्थना सुन। बोले क्या? स्नेह पासमिमं चिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। हे श्री कृष्ण, मैं दो जगह से बधी हुई हूं। एक पांडवों से मैं स्नेह पास से बधी हुई हूं, और दूसरा तुम्हारे वंश के साथ, यदुवंश के साथ में स्नेह पास से बधी हुई हूं। ये दोनों स्नेह पास से मुझे मुक्त कर दो। मेरे बंधन काटो प्रभु, मोहपास के बंधन काटो। यह शरणागति। भगवान के पास हम एक ही प्रार्थना करते, प्रभु हमारे स्नेह पास को काटिए। जगत में हम बधे हुए स्नेह पास से, प्रभु हमारे स्नेह पास का बंधन काटिए। और अंत में तो अद्भुत कह दिया, त्वयि में अन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मद्वहता दद्दा गंगे मौघ मुदन्वती। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी की अजस्र धारा है, अखंड रूप से गंगा सागर में विलीन होती है। गंगा जी की अजस्र धारा है, असंख्य धारा सागर में सतत विलीन हो रही है। वैसे मेरे मन की सब धारा है, मन का सब चिंतन सतत अविचल रूप से केवल तेरा ही चिंतन करता रहे। ऐसे हे द्वारिकाधीश, हे प्राण प्रिय, हे प्राणधन, वो सर्वस्व तुम मेरे हो, यही मुझे वरदान। अद्भुत मान लिया। मेरे मन की अजस्र धाराएं सतत केवल केवल और केवल तेरा ही चिंतन करती रहे, तेरे सिवा और किसी का चिंतन न करे। बस यही वरदान तो। हे द्वारिकापति, भगवान मैया को अपने वक्षस्थल से लगाते। और ये कुंती स्तुति में माता कुंती के अनेक भाव प्रकट हुए हैं। शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव और पूर्ण शरणागति, ये चार भाव प्रकट हुए। अद्भुत है। मानव, हम भी भगवान से आइए प्रार्थना करें, प्रभु हम भी संसार में मोहपास से बंधे हुए हैं, प्रभु हमारे मोह का बंधन काटिए। जैसे हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, संसार में कैसे रहना, बड़े घर की दासी की तरह, सबको अपना प्रेम देना, सबको लगे कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन मन ही मन जाने कि इसमें से कोई हमारा नहीं है, हमारा एकमात्र भगवान है। और हमारे संसार के सब संबंध झूठे हैं, प्रत्येक संबंध झूठा है। यहां एक भी संबंध सत्य नहीं है। संसार तभी तक हमारे साथ संबंध रखेगा जब तक उसको उसकी इच्छाएं हमारे पास से पूर्ण होती है। जब उसकी इच्छाएं पूर्ण होना बंद हो जाएगी, संसार का कोई व्यक्ति पूछेगा नहीं। यही संसार है। हमें भगवान से कहना है, प्रभु हम तुम्हारे थे, प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। प्रभु हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे।
क्योंकि मेरा और आपका संबंध ही सत्य है, बाकी सब संबंध झूठे हैं। भगवान ने इसलिए गीता में कहा कि जगत में सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। बस यही प्रार्थना के साथ हम भगवान श्री राम कृष्णदेव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मुंह पास काट करके हमारे मन का चिंतन आपके चरणों में लगाइए। हम क्षमा प्रार्थी है, हम बाकी का भाषा में नहीं बोल पाए, बंगला भाषा में, क्योंकि वो चिंतन की धारा फिर शब्द ढूंढना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और एक भाव में जाते हैं तो कभी वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्षमा प्रार्थी हूं मैं। अब कभी भविष्य में फिर से और तैयारी करके आएंगे तो कभी कुछ बोल पाएंगे हम। आप हमारी मर्यादा को समझिए और मुझे क्षमा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आप सबके चरणों में वंदन। प्रणाम महाराज जी। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमान हुतरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनी कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र
भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज। प्रणाम महाराज जी, खूप सुंदर, प्रणाम। खूप सुंदर, खूप सुंदर, बहुत अच्छा। खूप सुंदर. धन्यवाद आज निवेदन।